ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو آج ہمارے GNN کے آفس کے باہر ہی پیش آیا، اس کی کنڈمنیشن بھی ہم کرتے ہیں، اس پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تکلیف کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور پتہ چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، معاملات ہیں کیا، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن شام کو 5:45 بجے GNN پر سعید قاضی صاحب جو کہ ہماری ٹیم کے سینئر ممبر ہیں، ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ مکمل کروا کے باہر نکلے۔ پروگرام 7 بجے آن ایئر ہوا ہے، آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا۔ اس پر رؤف حسن صاحب جب اپنی گاڑی کی جانب جا رہے تھے، لیٹ می ایکسپلین کہ یہ بڑا سیف اینڈ سیکیور ایریا ہے جہاں پر ہمارا آفس ہے، یہاں پہ اور بھی میڈیا کے آفیسز تھوڑے دور جا کے ایک اور بگ چینل ہے، ان کا بھی آفس ہے، اس کے علاوہ سامنے بھی آفیسز ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گورمے بیکرز ہیں اور ان کے بالکل اپوزٹ ایک پارک ہے۔ سو یہ ایک بہت ہی سیف سیکیور انوائرمنٹ ہے۔ اکثر لوگ اپنی گاڑیاں وہاں پارک کرتے ہیں جہاں پہ رؤف صاحب نے پارک کی تھی، میں خود اپنی گاڑی وہیں پر پارک کرتی ہوں۔ یہ واک کر کے اس طرف جانا شروع ہو رہے تھے تو کچھ افراد آئے، اور اب تو نظر آ رہا ہے فوٹیج میں کہ خواجہ سرا کے لباس میں ہیں یا خواجہ سرا ہی ہیں، انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ رؤف حسن صاحب کو بلیڈ مارا گیا، وہ بلیڈ وہیں پہ چھوڑ گئے جس کی ہم نے فوٹیج بنائی اور وہ ابھی آپ نے اسکرینز پہ دیکھی ہوگی، اور بلیڈ بھی ایسے مارا گیا کہ ان کے چہرے پہ زخم لگا اور شدید زخم لگا، یعنی فل پاور سے وہ مارا گیا ہے، ورنہ ایک چھوٹے سے بلیڈ سے آپ کتنا کسی کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اور سوال یہی ہے کہ اگر ابھی تو یہ چیک پہ لگا ہے، اگر یہ گردن پہ لگ جاتا یا کہیں اور لگتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا۔ اس حملے کے بعد رؤف حسن صاحب کو فوراً ہسپتال لے کے گئے۔ رؤف حسن صاحب کو چہرے پر 19 ٹانکے لگے ہیں۔ مائنر OT میں ایک صاحب ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ہمارے رپورٹر کو بتایا کچھ اور انجریز بھی تھیں، جیسے کہ ان کو مارا پیٹا گیا تھا، لیکن فیس کی انجری جو تھی، جا کی انجری، وہ سب سے زیادہ خطرناک لگی انہیں۔ کل سے رؤف حسن صاحب کو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں پتہ چل رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ کل بھی جب وہ ایک نجی ٹی وی چینل پر ریکارڈنگ کے بعد واپس جا رہے تھے تو اس وقت بھی چند خواجہ سراؤں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ شاید اس سے یہ جواب ملتا ہے کہ کیسے جو ایک صاحب وہاں پر موجود تھے انہیں ہمیں بتایا کہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم کل سے تمہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل سے تمہارے پیچھے ہیں۔ سو اس وقت تک یہ فوٹیج ایمرج نہیں ہوئی تھی، ہم نے یہ بات رپورٹ کی تھی GNN پر ہی، اور جب فوٹیج آئی تو دین وی انڈرسٹوڈ کہ اصل میں یہ ٹارگٹ ہی کیا جا رہا تھا۔ ایک دن پہلے ایک اور چینل پہ کیا اور پھر آج ادھر کیا اور پھر ان کو موقع مل گیا۔ اب ایگزیکٹلی انٹینٹ ڈرانے کی تھی، ایگزیکٹلی انٹینٹ زخمی کرنے کی تھی، ایگزیکٹلی انٹینٹ کوئی بدلہ لینے کی تھی یا پھر قتل کرنے کی تھی، یہ کوشچنز ہیں۔ آج جب وہ ہمارے چینل پر ریکارڈنگ سے نکلے تو خواجہ سراؤں نے ہی ان پر دوبارہ حملہ کیا۔ حملے کے بعد ترجمان تحریک انصاف جو رؤف حسن ہیں وہ پھر چل کے اندر آئے آفس میں جب ہاسپٹل جانے سے پہلے، اس وقت انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ یہ جو وونڈ کی یا گیش کی جو بات کریں وہ پکچر ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب ابھی تھوڑا سا بلر کر کے اس کو چلائیں گے یا ٹریگر وارننگ ہم پہلے دے دیں گے، وہ آپ دیکھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایگزیکٹلی زخم کیسا تھا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس وقت وہ چل رہی ہے فوٹیج۔ شبلی فراز صاحب نے اس کی شدید کانڈمنیشن کی، دیگر آبویسلی PTI کے لیڈرز نے اس کی کانڈمنیشن کی، PMLN کے لیڈرز نے بھی اس کی کانڈمنیشن کی۔ سینٹ میں یہ معاملہ اٹھا دیا ہے شبلی فراز صاحب نے، ذرا دیکھیے۔ مجھے یہ ایک بہت ہی تشویشناک خبر ملی ہے جس میں کہ ہمارے پارٹی کے اسپوکس پرسن رؤف حسن کو فزیکلی اٹیک کیا گیا ہے اور ان کو زخمی کیا گیا ہے۔ امیڈیٹلی آپ کا ریئیکشن چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس واقعہ ہے کہ بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک پارٹی کے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اس کے اسپوکس پرسن کو فزیکلی اٹیک کیا جاتا ہے، یہ قابل برداشت نہیں۔ اس کا جواب وزیر قانون نے دیا اور کچھ اس طریقے سے دیا۔ یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا، کب پیش آیا، کس نوعیت کا ہے، آیا ان پہ حملہ آور جو ہیں ان کی شناخت ہوئی، انہیں نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ڈیل ہونی ہے۔ کوئی ایسا غیر مرئی طریقہ کار نہیں ہے قانون میں جس سے فوری یہ ساری انفارمیشن آ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں they should be dealt with in accordance with law. This is what the constitution says. اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، وہ رپورٹ درج کروائیں، ایگریوڈ پرسن ہے، اس رپورٹ کے اوپر بالکل جو قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی۔
शान अब्बास बफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एंड जब तक के मामला हमने बताए हैं, फिर आप आगे से बता सकते हैं, फिर आप हॉस्पिटल पहुंचे एंड यू मेट हिम। मैं जब हॉस्पिटल गया तो वो ओटी में थे उस वक्त, उनके वो टांके लग रहे थे 19 टांके। उसके बाद उन्होंने कमरे में उनको शिफ्ट किया और नाउ ही हैज़ गॉन टू हिज होम, अपनी फैमिली के साथ चले गए। बट वहाँ पे सारा पीटीआई था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। जो हैरानी की बात है, जो इशू ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, इशू ये कि वहाँ जो पुलिस खड़ी थी, बजाय ये कि वो इन्वेस्टिगेट यहाँ आपके दफ्तर के बाहर आके आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगे, कुछ देखें कौन कहाँ था, वो बाहर के लिख रहे थे कि कौन कौन उनको मिलने आ रहा है, ये भी आ गया, ये सेनेटर भी आ गया, ये फलाना भी आ गया। सो ये जो माइंड सेट है, अगर आप वीडियो फुटेज को दोबारा एक दफ़ा चलाएं तो आपकी थोड़ा ऑडियंस को पता भी चलेगा। तीन ख्वाजा सरा, उसमें जो चौथा है वो चादर वाली एक सरकार था, वो ख्वाजा सरा नहीं लग रहा था, वो एक मर्द लग रहा था जो चादर पहन के आया था। असल में छुरी या चाकू जो ब्लेड उसके पास था, तो जब उसने अटैक करने के लिए निकाला तो चादर नीचे गिर गई। अब वो 4 बंदे आ रहे हैं, एक वीडियो फुटेज बना रहा है, उसके बाद फिर अचानक आके एक बंदा नीचे से वो चाकू वो उठाने की कोशिश भी करता है ताकि उसको जेब में बना रहे, और एक आके उसको थ्रेट भी करता है कि जो भी सबक दिया, जो भी मैसेज दिया, वो जो उठा रहे हैं, आपको लगा वो ब्लेड उठाया नीचे से, वो ऑब्वियसली वो आला कत्ल था, ये टारगेटेड मर्डर था। वो जो नीचे से उठाया गया, वो उठाने की कोशिश की, छुपा के लेके फिर चादर उठाई और फिर वो चला गया। बट कैन यू इमेजिन कि इस्लामाबाद जैसे इलाके में, इस जगह जैसा आप बता रही थी, वहां पे कोई बंदा वीडियो भी बना रहा हो, मतलब वो 4 बंदे आ रहे हैं और वीडियो 7 बंदा कैमरा बना रहा, और फिर आराम से उन्हें उठाया और उठ के बस सारे चले गए। 2 ब्लेड हो या हो सकता है 2 हो 4 हो, बट ये कंडेमनेशन का जो लफ्ज़ है ना, मुझे अब इस पे भी शर्म आती है। एक शख्स है, मतलब ये अंधी लाख कानूनियत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता है। एक MNA हो ना, 7-8 लाख वोट लेके आता है, वो अपने हल्के की बात करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक शख्स 24 करोड़ आवाम में सबसे मकबूल तरीन जमात का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो, और जिस तरह का है रऊफ हसन साहब, बड़े मुतदल किस्म के इंसान है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सॉफ्टली प्रेजेंट करते हैं, उसके साथ दिन दिहाड़े इस तरह का। सो सॉरी नोट कि किसी भी हालत में उन पे हमला होना चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, आज़ार आज़ादी जिसको कहते हैं, दे, जैसे कि आज ये पंजाब ऑर्डिनेंस, पंजाब में ऑर्डिनेंस लेके, तो उसके साथ है पाकिस्तान के कानून में। अगर जैसे आपने कहा कि अगर उनकी चीख पे था, अगर गलती से नीचे चला जाता तो ये शहरक है, वो कट भी सकती थी, वो एक पाकिस्तानी शहरी, वो मर भी सकता था। मतलब सीरियसली, डू यू रियली थिंक हम इसके ऊपर डिस्कशन ये करेंगे कि उसने क्या कहा या क्या नहीं कहा? इट्स जस्ट कॉमन पाकिस्तानी जिसके साथ आज इस्लामाबाद जैसे यहाँ पे फॉरनर्स फिरते हैं, ये क्या मैसेज चला जाएगा, वो क्या हो रहा है? एंड वो जिस तरह के वो तीनों ख्वाजा सरा थे, कल की फुटेज आपने खुद देखी, कल से वो फॉलो कर रहे थे, कल वो चादर वाला भाई साहब साथ नहीं थे, कल 3 वो लोग थे, उन्होंने अगर उसमें ऑब्वियसली आपने एक चीज़ और देखी, कल वो मीडिया वाले जो शख्स, जो एंकर पर्सन था, जो भी भाई था, वो साथ उसको छोड़ने के लिए आया, इस वजह से अटैक लेट हुआ। आज आपके दफ्तर से निकलते हुए नोबडी वाज अकम्पनिंग हिम, ही वाज अलोन, और आपको पता है वो गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर उनके पास है नहीं, दैट्स द वे ही इज। तो अभी कल से वो उसको फॉलो कर रहे थे, आज उनके हाथ चढ़ गया, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। ज्यादा हुई क्योंकि हमारे ऑफिस का प्रेमिस जहाँ पे खत्म हुआ है, उससे जैसे ही वो बाहर निकले हैं वहाँ पे। बट मैं वैसे सोच रहा था कि जो भी ये शख्स देखे, उसको ही पता तो होगा ये मीडिया का दफ्तर है, यहाँ CCTV है, कोई देखेगा, कोई शक्ल नजर आएगी, कल को फोरेंसिक होंगे, चीजें मिल जाएंगी। आई मीन कितना एक वो बहादुर मतलब प्लानर्स है जो ये कर रहे थे उसको मारने के लिए, मतलब उनको कुछ भी खौफ नहीं है। आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू से। क्या रऊफ हसन साहब की भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो मारने के लिए आए थे? क्योंकि मैंने उनका कई स्टेटमेंट देखा, उन्हें कहा डराने के लिए आए थे। आई डोंट नो, ये तो खुद बता सकते हैं कि आखिर में एक शख्स ने उनको कोई बात भी की, ऐसे इशारा करके ना, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम। अब वो मैसेज क्या था वो तो रऊफ हसन साहब बता सकते हैं, बट अगर वो कल से उसको फॉलो कर रहे थे और आज उनके वो मतलब इस चीज़ को उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, तो आई मीन मेरे ख्याल में तो ऑब्वियसली इट कुड हैव बीन वेरी मतलब खतरनाक हो सकता है। ये बात ठीक है उसकी, इसलिए आपने कहा कॉन्डमनेशन के वर्ड पे अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, लेकिन दिस इज़ द ओनली वर्ड वी हैव राइट नाउ। अली गौहर बलोच साहब, ये जो वाक़या हुआ है इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें प्रिया, इसमें कोई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और अभी आपके प्रोग्राम की बात मैं सुन रहा था, तारिक साहब अपना मौक़िफ़ ले रहे थे, जिब्री साहब ने जो है वो सेनेट के उसमें ये मामला उठाया। मैं भी यही समझता हूँ कि ज़ाहिर है इस वाक़या की फौरी तौर पर होनी चाहिए, और ज़ाहिर है काफ़ी सबूत है, और मैं समझ इसको भी मुलज़मान तक पहुँचने में आसान, जिसमें कि CCTV। आपने कहा वाक़े की तहकीक होनी चाहिए, साइड में उठा दिया गया। अली गौहर साहब, जैसी आवाज़ आपसे बेहतर होती है हम आपसे बात करते हैं। हमारे साथ उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं जो कवर करते रहे इस तमाम के तमाम मामलात को। भट्ट साहब, इस वक्त
थोड़ा सा रिकैप दें और क्या क्या बातें हैं जो आपने खुद देखी हैं। जी, रऊफ हसन साहब जब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब बाहर निकले तो पहले से ही घात लगाए जो ज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे मुल्ज़िमान, उन्होंने हमला किया। और जब इसकी सीसीटीवी फुटेज हमने देखी तो एक जो ख्वाजा सरा था वो उनकी गाड़ी के पास जाता है और इस चीज़ की तस्दीक करता है कि आया वो इस गाड़ी में मौजूद है या नहीं, और वो फिर इशारा करके बताता है और रोड के उस जानिब जाके उनको बताता है कि गाड़ी में वो मौजूद नहीं है, जिसके बाद वो वहां पर ही मौजूद रहते हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो इनके ऊपर जो हमला करने से पहले एक शख्स उसमें से इशारा भी करता है और उनको बुलाता है बाकी तीनों को, और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो हमला किया जाता है। और ज़राए ने ये भी बताया कि जो ब्लेड उनके चेहरे पे लगा है मुज़ाती तौर के ऊपर, उनकी गर्दन पर नहीं लगा, वो उसके ऊपर एक मखसूस केमिकल भी एक लगा हुआ था, जिसके बाद जो जिसको ये मारा जाता है उस शख्स को एक अजीब सी जो इरिटेशन होती है और वो अपना चेहरा जो है वो नोचना शुरू कर देता है। ये उस्ताद राय ने ये चीज जो है इसकी तस्दीक की है और उनको जो घाव आया है वो काफी लंबा और गहरा है। और ये आपने जो बात की है, आप कह रहे हैं कि केमिकल लगा हुआ था, ये किसने ये उसका फोरेंसिक हो गया ब्लेड का? जो उस्ताद राय हैं उन्होंने जो है इस चीज की तस्दीक की है कि सिर्फ ये ब्लेड नहीं था, इसके ऊपर मखसूस केमिकल भी लगा हुआ था कि जिसके बाद जो शख्स जिसके ऊपर इससे हमला किया जाता है वो अपने आप को खरोचना, जो अपना चेहरा जो है वो शुरू कर देता है। इस चीज की जो है तस्दीक की गई और उसके बाद हमने देखा कि जो पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंची है। तस्दीक हो गई है क्योंकि अभी ऑब्वियसली किसी लैब से जो टेस्ट नहीं हुआ होगा, एक खदशा होगा। इनिशियल जो है वो रिपोर्ट जो डॉक्टर ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये अच्छा, ये आपको पीएफ हॉस्पिटल से आप जो बात की गई है वो बता रहे हैं ये? जी, ज़राए ने जो अस्पताल ज़राए हैं उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। और उसके बाद जो यहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आए हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अभी इनिशियल अपनी रिपोर्ट जो है मुरतब नहीं करेंगे जब तक हम अतराफ की जितनी भी इमारतें हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हासिल ना कर लें। और जो एसपी सिटी हैं यहाँ के खानजे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने उनको भी जब बताया गया कि गुज़श्ता रोज भी एक इसी तरह का वाक़या जो है वो पेश आया था और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आई। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो एक सोच है उसके ऊपर अटैक था और जो उसकी एक नजरियाती जो एक लीडर है जो हर टीवी चैनल के ऊपर हर अखबार में जाकर एक पीटीआई इमेज जो है वो एक पॉजिटिव इमेज जो है उजागर करने की कोशिश करते हैं, ये उनके ऊपर अटैक था।